Hello guys, welcome to my channel Maths Sir. In my today's video, we are going to talk about a new thing again, scientific form. This is mentioned in some of the book under a chapter exponential powers. So let us try to learn scientific form of a number. What does it mean? और ये क्या है, कैसे है, आइए ये सब जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए. हमें साइंटिफिक फॉर्म सीखने के लिए क्या चीज़ पता होना चाहिए कि किसी नंबर को जैसे 643.92 643.92 इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं इस डेसिमल को 2 डिजिट इधर लेके आ रहा हूँ, मीन्स अगर मैं इस नंबर को कुछ ऐसे लिखना चाहता हूँ, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, इन दिस केस always you have to take the positive power. How many places I have taken? 1 2. After 2 digit I have taken the decimal here, so power will be positive. ये आपको याद रखना है कि डेसिमल यहाँ तक 2 डिजिट लेफ्ट में आया तो पावर क्या आएगी 10 की पॉजिटिव 2. ये क्यों आया है पॉजिटिव 2? आप देखिए, क्योंकि जब भी कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, when we are multiplying, suppose 10 raised to the power 2 means 100, means when we are multiplying a decimal number with 100 or 1000, how many zero it has, the decimal will move toward the right hand side, means it has 2 zeros. It means when you will multiply with this, you will get what? The decimal will shift toward 2 digits, means 1 2. You will get the answer 643.92. So that is why when we are transferring this decimal on the left hand side, we always take the positive power of a number 10 always. And one more thing, whenever suppose we have a number like 00043, so when you have to write 4.3, in that case it means we are pushing this, we are transferring the decimal to right hand side. It means where? Right hand side. It means here what we are doing, 1 2 3 4, after 4 digit we are placing the decimal here. So what will happen? Always you have to take the power in negative. 1 2 3 4, after 4 digit we are placing this decimal from here to here, so it means you have to take the power in negative because we are transferring the decimal over right hand side. This you have to remember for doing the multiplication, or sorry, for transferring the decimals. So next thing, we have to know about why we are using this, means हम क्यों यूज करते हैं ये scientific form. The scientific form we are using, as you know, suppose a very big number, someone having a set of this much rupees. Now how do we represent this one? It is very difficult because big numbers, writing big numbers, understanding big numbers, calculating big numbers is little difficult for us. So it is better to write those into the short form. So scientific form we are using to write the short form of the numbers. Let me tell you how. The very first rule is you have to keep the decimal just after a non-zero digit, leftmost non-zero digit. Means जो सबसे बायां नंबर है नंबर में, जो सबसे लेफ्ट में है, उसे लिखने के बाद इसके जस्ट बाद में हमें डेसिमल चाहिए. और डेसिमल के बाद कहाँ तक लिखना है? वहां तक लिखना है जहां तक एक नॉन जीरो डिजिट है, जो जीरो नहीं है.
तो इसको छोड़कर सिर्फ एक ही मेरे पास ऐसा नंबर है जो कि नॉन जीरो, तो हमने 3 लिख दिया। 3 के बाद सारे जीरो हैं तो यहाँ पर एक भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद जस्ट राइट द मल्टीप्लिकेशन साइन, राइट 10। नाउ what power we will write as I explained you earlier, what I have explained you. Now suppose this is a number, in this number there is no decimal but there is decimal. How? किसी नंबर में अगर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो उसका डेसिमल सबसे लास्ट में होगा, here in the last, because after this decimal there is no non-zero digit, that is why we had not placed the zero. अगर लास्ट के जीरो के बाद जो बाद में एक डेसिमल है और डेसिमल के बाद में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, सिर्फ जीरो जीरो ही है, उस केस में उन जीरोस को भी हम हटा देते हैं और इस डेसिमल को भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इसे लिखने के लिए, साइंटिफिक फॉर्म लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली जीरो की पोजीशन क्या है, डेसिमल की पोजीशन क्या है। तो डेसिमल की पोजीशन ये है। अब हम डेसिमल को कितने डिजिट यहाँ तक ला रहे हैं, लेफ्ट साइड में ला रहे हैं। हमने यही सीखा था, जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो हम पावर 10 की पॉजिटिव में लिखेंगे। तो देखिए कितना डिजिट यहाँ तक ला रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स डेसिमल 8 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पर आया है, यहाँ पर आएगा। इसका मतलब हम पावर क्या लगा देंगे, 8। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। मैं एक और एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास रुपीस हो गए। अब इनको समझना ज़्यादा आसान है, कैलकुलेट करना भी इजी है। बाय यूजिंग एक्सपोनेंट एंड लॉज वी कैन इजीली सॉल्व दिस। अगर आपने एक्सपोनेंट एंड लॉज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ मैं आई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एक बार चेकआउट करिएगा। सेकंड के मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए जैसे 456.78, इसे मुझे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या सीखा था, लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और सारे नंबर्स को वैसे का वैसा लिख देंगे। लिख दिया, क्रॉस करके 10 लिखना है। अब 10 की क्या पावर लगानी है, 10 की पावर वो आएगी कि जितना डिजिट डेसिमल मूव करके इधर आया है। तो डेसिमल कितना डिजिट मूव करके आया है, 1 2, यहाँ पर आया है, सो पावर आएगी 2। सो आई थिंक ये हमारा फर्स्ट केस था जब डेसिमल लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। तो आइए सीखते हैं सेकंड केस। व्हाट इज सेकंड केस? जब हमें जरूरत पड़ेगी डेसिमल को लेफ्ट से राइट में ले जाने की। सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज आई हैव अ नंबर 0000432। सपोज दिस इज अ नंबर वी हैव। सो हाउ टू डू? हाँ, हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट जो नॉन जीरो डिजिट है, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। अगर हम राइट साइड से चेक करें, इधर को लेफ्ट साइड को मूव करें, तो आप देखिए लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4 ही है जो जीरो नहीं है, बाकी तो सब जीरो है। तो इसका मतलब है कि मुझे डेसिमल 4 के बाद चाहिए, 4 और 3 के बीच में। तो 4 और 3 के बीच में मुझे डेसिमल चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ। अब 2 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो मैंने उसके बाद कुछ नहीं लिखा नहीं है। अब क्रॉस 10 की क्या पावर आएगी, 10 की पावर क्या लिखना है, मैंने क्या बताया था। अब डेसिमल मेरा पहले लेफ्ट साइड में था, अब यहाँ से हटके 4 और 3 के बीच में आ गया, मतलब ये राइट साइड में मूव हुआ है डेसिमल। इसका मतलब हमें पावर नेगेटिव में लगानी है, लेकिन कितना नेगेटिव, जितना डेसिमल जंप करके गया है। कितना किया है, 1 2 3 4 एंड 5, सो पावर विल बी -5. This is the answer. This is the scientific form of this number. So this was the second case. I hope it will be clear to you. This was a very small topic. बड़ा ही छोटा टॉपिक था ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, but very useful because it is helpful in large calculations with the help of exponent and its laws. If it is meaningful to you, please like, share and subscribe. So let us enough for today. In my next video we will start one more new topic. Till then, thank you, bye bye.